Reading Indian Fiction in English. आजादी. चमन नहल की रचना. रिलीज दिनांक 21 अप्रैल 1975. अंग्रेजी में. Very important lines in English on this topic. Chaman Nahal. Chaman Nahal's Azadi is a moving and heartbreaking story of the 7 West Punjabi families who were deeply affected by the partition. The novel is divided into 3 parts. They are 1. Lull 2. The Storm 3. The Aftermath. In the second part, there is heart-rending graphic description of riots and annihilation of Hindu families in Sialkot. Lala Kanshiram, a central character, an epitome of humanity, had respect for the British, as they had brought peace to the war-torn land and made a nation. But his faith in the Angrez Raj diminished when he heard the announcement of the British took with the country after partitioning it. We understand his displeasure with the British when Lala made angry remarks about the irresponsibility of the British, that the British never thought of them while partitioning the country and they betrayed the minorities sanctioning division. The word refugee was new. Lala, he didn't understand it and said to himself, I was born here. This is my home, how can I be a refugee in my home? Nahal aptly titled the novel. Azadi is an ironic title, freedom. The freedom which threw them on the road, made homeless, forced to leave the motherland, and there was not a family that had not suffered in riots. Some lost loved ones, some women were abducted and raped. Did they want freedom at the cost of the lakhs of deaths? Author questions the so-called leaders of the nation, through the central character Lala, and accuses them for not taking into consideration of the lives of the minorities in Pakistan. Lala was deeply anguished when he was asked by an inquiring officer in Amritsar that what the purpose of going to Delhi was. To quote Lala's unpleasant remarks, I am going there to have a meal with Nehru to celebrate Azadi. This is a wonderful book, which put the terrible history and agony of the people before the future generations to learn the lessons from the past. अंग्रेजी उत्तर का हिंदी अनुवाद. चमन नहल. चमन नहल की आज़ादी 7 पश्चिमी पंजाबी परिवारों की एक मार्मिक और हृदय विदारक कहानी है, जो विभाजन से गहराई से प्रभावित हुए थे. उपन्यास को 3 भागों में विभाजित किया गया है. 1. शांति 2. तूफान और 3. परिणाम. दूसरे भाग में सियालकोट में दंगों और हिंदू परिवारों के विनाश का हृदय विदारक ग्राफिक वर्णन है. लाला कांशीराम, एक केंद्रीय चरित्र, मानवता के प्रतीक, अंग्रेजों के प्रति सम्मान रखते थे, क्योंकि उन्होंने युद्धग्रस्त भूमि पर शांति लाई थी और एक राष्ट्र बनाया था. लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देश का विभाजन करके छोड़ देने की घोषणा सुनी तो अंग्रेज राज के प्रति उनका विश्वास कम हो गया. हम अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी को समझते हैं. जब लाला ने अंग्रेजों की गैर जिम्मेदारी के बारे में गुस्से में टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने देश का विभाजन करते समय उनके बारे में कभी नहीं सोचा और उन्होंने विभाजन को मंजूरी देकर अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात किया. शरणार्थी शब्द लाला के लिए नया था, उसे यह समझ नहीं आया और उसने मन ही मन कहा, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यह मेरा घर है, मैं अपने घर में शरणार्थी कैसे हो सकता हूँ. नाहल ने उपन्यास का उपयुक्त शीर्षक दिया. आज़ादी एक विडंबनापूर्ण उपाधि है. आज़ादी एक ऐसी आज़ादी जिसने उन्हें सड़क पर फेंक दिया, बेघर कर दिया, मातृभूमि छोड़ने को मजबूर कर दिया और ऐसा कोई परिवार नहीं था जो दंगों में पीड़ित न हुआ हो. कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कुछ महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया. क्या वे लाखों लोगों की मौत की कीमत पर आज़ादी चाहते थे? लेखक केंद्रीय पात्र लाला के माध्यम से देश के तथाकथित नेताओं पर सवाल उठाता है और उन पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के जीवन पर ध्यान न देने का आरोप लगाता है. जब लाला से अमृतसर में एक जांच अधिकारी ने पूछा कि दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है तो उन्हें बहुत दुख हुआ. लाला की अप्रिय टिप्पणी को उद्धृत करने के लिए, मैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए नेहरू के साथ भोजन करने जा रहा हूँ. यह एक अद्भुत पुस्तक है, जो लोगों के भयानक इतिहास और पीड़ा को भविष्य की पीढ़ियों के सामने रखती है ताकि वे अतीत से सबक सीख सकें. आज़ादी. कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य. आज़ादी या फ्रीडम एक ब्रॉड गेज उपन्यास है, जो 1947 में एक 7 पश्चिमी पंजाबी परिवारों द्वारा अनुभव किए गए विभाजन से संबंधित है. जैसा कि पश्चिम पंजाब के एक छोटे से गांव में एक अनाज व्यापारी के परिवार ने अनुभव किया था. एक हिंदू नागरिक, अपनी पत्नी से कुछ हद तक अधिक शिक्षित और अपने बेटे के पीछे, जो अब कॉलेज में है, नाम लाला कांशीराम, ने हमेशा अंग्रेजों को अंग्रेजों की नज़र से देखा. एक ऐसी नफरत जो प्रशंसा से रहित नहीं है. उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि इसके बाद और भी बड़े अलगाव और दुख होंगे. जैसे कि एक अंग्रेजी सैनिक द्वारा सड़कों पर एक कुत्ते को गोली मारने से उसी उदासीनता का पता चलता है जिसके साथ उन्होंने एक बार भारतीयों को गोली मार दी थी, जो कि दंगों के बाद के दृश्यों के लिए केवल चश्मदीद था उस लूटपाट, भगदड़ और कत्लेआम की.
एक ऐसा विभाजन जो मुस्लिम और हिंदू के बीच अधिक रक्तपात को जन्म देता। लाला कांशी राम और उनके परिवार के बचे लोगों, उनकी बेटी, जो अन्यत्र मार दी गई, को उनकी अनिश्चितताओं और पछतावे के साथ और अधिक अकेला छोड़ देगा। बीच में परिवार को एक शरणार्थी शिविर के लिए गांव छोड़ने हेतु मजबूर किया जाता है, आगे स्थानांतरित किया जाता है, और अंततः नई दिल्ली की बेघर सुरक्षा में परिवार पहुंचता है। अरुण, उसके बेटे को, बहुत निचली जाति की उपलब्ध चांदनी, एक मुस्लिम लड़की, के लिए अपना प्यार छोड़ना होगा, केवल इसलिए क्योंकि मुसलमानों द्वारा उसका अपहरण किया गया। कुल मिलाकर नाहल अन्य कार्यों के लेखक, उपन्यासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख। पारिवारिक जीवन और इसकी यौन अंतरंगता और घर्षण के शोर से भरे हुए हैं। उपन्यास जितना इसमें बताया है उससे अधिक हद तक सूचित करता है उस पूर्व पश्चिम क्लिच की पूर्वनिर्धारित अनिवार्यताओं को, लेकिन यह फायदेमंद है क्योंकि यह न केवल एक देश को बल्कि एक हद तक एक सभ्यता को गति प्रदान करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.